Okay, good morning students. As we have learned in our last video कि how we can import the data from or to CSV file. In the same chapter, today we will also discuss how we can import or export data to the CSV file or from the data frame. For this, we need two different functions. One is read underscore CSV. If you want to read the data from CSV file, if you want to read the data from CSV file, we will use data frame object name or any variable name equal to read underscore. This is the underscore. Okay. So use this underscore downside like this. Read underscore CSV, then file path. If we want to write to the CSV file, so we'll use the next function df dot to underscore CSV, then again file path. जहां पर आपकी फाइल स्टोर है, you can see the example df equal to pd dot series, because first of all we need to import pandas as pd. Okay, so then we write pd dot read underscore csv, then you need to give the file path, give the complete file path. लाइक सी ड्राइव के ऊपर XYZ नाम का फोल्डर है, उसमें ABC या किसी भी नाम से वो फाइल आपकी हो सकती है .csv. Some more arguments also required, but this is a simple way. जो दूसरे आर्गुमेंट्स हैं जैसे हेडर इक्वल टू नन या नेम इक्वल टू, कि हम अपने खुद के कॉलम नेम ऐड करना चाहते हैं, राइट? we have already discussed in our first video. So if we want to read data from the CSV file, read underscore CSV, right? If we want to write the data to the CSV file, then use the to underscore CSV function, then file path. Okay. So in this way we can read and write our data to the CSV files. Okay. So as I told you, we can read data of the CSV file like this. And if you want to give our column name, हम अपनी तरफ से column name provide करवाना चाहते हैं, तो we need to pass an extra argument, that is names equal to or sequence of column name, right? If we want to give our column names as 0, 1, 2, 3, so you have to write one extra argument, header equal to none, right? We can also skip some rows while reading the data. स्किप रोज इक्वल टू जो भी रो का नंबर आप देंगे वो रो स्किप हो जाएगी, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी. वी कैन ऑल्सो स्किप मोर रोज एट ए टाइम, सो वी हैव टू पास द रो नंबर. फॉर एग्जांपल स्किप रोज इक्वल टू 3, 5, 7, तो थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ रो जो है वो आपकी इसमें से स्किप हो जाएगी. वी हैव ऑलरेडी डन दीज एग्जांपल्स इन आवर फर्स्ट वीडियो, राइट? अगर हम कोई भी कॉलम का जो नाम है उसको एज ए इंडेक्स वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आपको इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू उस कॉलम का नाम लिखना है, तो उसकी जो वैल्यू है वो एज ए इंडेक्स वैल्यू बन जाएगी. लाइक दिस यू कैन सी. ओके, नाउ लेट्स कम टू नो रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल. CSV फाइल से हम कुछ पर्टिकुलर रोज को रीड करना चाहते हैं. सो गिविंग आर्गूमेंट n रोज इक्वल टू n. n में आपको वैल्यूज पास करनी है.
in read underscore CSV function that will read the specified number of rows from the CSV file. df6 इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV सी कॉलम ड्राइव के ऊपर डाटा नाम का फोल्डर है, माई डाटा डॉट CSV फाइल है, नेम्स इक्वल टू रोल नंबर नेम और सर नेम वट एवर इज़ गिवन एंड n रोज इक्वल टू 3. उसमें आप टोटल नंबर ऑफ रोज 3 रीड करना चाहते हैं, तो देखिए केवल 3 रोज ही उसके अंदर रीड हुई है, राइट, बिकॉज ऑफ आर्गूमेंट n रोज इक्वल टू 3. Only 3 rows have been read from the CSV file whose data is shown on the right. ये आपकी फाइल थी. Now you can see an example. Consider the employee CSV file used in example 1. Write a program to read the records from this file in the data frame and print the middle row stored in CSV फाइल. वो कहता है कि आपको मिडल रोज को रीड करना है, तो पहले 3 रोज कर लेते हैं. वी शैल लोड द टॉप 3 रोज इन अ डाटा फ्रेम, ओके, एंड देन डिस्प्ले द बॉटम रोज फ्रॉम द डाटा फ्रेम. ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pandas as pd और empdf इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV. जब भी आपको डाटा को रीड करना है CSV फाइल से, यूज़ दिस मेथड रीड अंडरस्कोर CSV. देन फाइल पाथ, कि आपकी फ़ाइल कौन से ड्राइव में है, किस फोल्डर में है और फाइल का नाम क्या है, कोमा n रोज इक्वल टू 3. तो यहाँ से क्या करेगा, वो केवल 3 रो इंक्लूड करेगा, राइट. n रोज इक्वल टू 3 मीन्स एज यू नो 3 रो इंक्लूड करेगा. देन प्रिंट मिडल रो, यू वांट टू मिडल रो, तो उसने क्या किया, प्रिंट emp डॉट टेल. आपको पता है टेल लास्ट से लेता है, 1 रो जो है आपकी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी. तो क्या होगा, उसमें आपकी 0 1 2 आई थी, उसने 2 को छोड़ के 1 जो है वो इंडेक्स जिसका था उसको खाली उसने प्रिंट कर दिया है, तो ये आपकी मिडल रो जो है इसके अंदर इंक्लूड हो गई है. रीडिंग फ्रॉम द CSV फाइल हैविंग सेपरेटर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमा. कई बार फाइल हमारी ऐसी बन जाती है कि CSV फाइल के अंदर हमने कॉमा यूज़ नहीं किया है, कोई और करेक्टर यूज कर लिया है, लाइक सेमीकोलन, पाइप सिंबल, टैब करेक्टर. तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक और आर्गूमेंट पास करना होगा, SEP इक्वल टू, यानी कि सेपरेटर इक्वल टू. So we can say some CSV file are so created that their separator character is different from the comma, such as semicolon, pipe symbol, etc. To read data from such CSV file, you need to specify an additional argument as SEP equal to separator character. You can see in the example, new df new equal to pd dot read underscore CSV. C के ऊपर डाटा मैच डॉट CSV, दिस इज द फाइल पाथ, कॉमा सेपरेटर इक्वल टू सेमीकोलन. अब यहाँ पे जो फाइल बनी हुई है CSV, उसमें जो सेपरेटर है वो कॉमा नहीं है, तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि उसमें सेपरेटर सेमीकोलन है, राइट. तो SEP आर्गूमेंट आपको ऐड करना है. यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम द sport .csv file where the separator is a tab character. You can see this file, tab character यानी कि हर वैल्यू के बाद टैब को यूज़ किया गया है, जिसमें 4 to 5 स्पेस होते हैं. तो you have to use the same argument SEP. The coding is almost same. Import, then take a data frame variable name pd dot read underscore CSV, then file path, then comma SEP equal to \t. ये टैब करेक्टर के लिए करेक्टर होता है, \t for tab, right. So you can see the output. So we can summarize the read underscore CSV. अगर आपको read underscore CSV मेथड यूज करना है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट ये वे वाले फंक्शन यूज होते हैं, तो आप इस सिंटेक्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा.
df इक्वल टू कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, pandas डॉट लिख सकते हैं या pd डॉट लिख सकते हैं, रीड अंडरस्कोर CSV, फिर फाइल का पाथ आएगा, SEP सेपरेटर करेक्टर अगर आपका कॉमा से डिफरेंट है तो SEP आपने यूज करना है, राइट। देन अगर आप खुद के कॉलम नेम देना चाहते हैं तो नेम्स इक्वल टू और फिर आपको कॉलम के नाम प्रोवाइड करवाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू एज ए इंडेक्स आ जाए तो फिर आपको इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल आर्गुमेंट आपको पास करना है और कॉलम का नाम देना है जिसकी वैल्यू को हम एज ए कॉलम इंडेक्स देना चाहते हैं तो उस कॉलम का नाम आपको लिखना है, ठीक है। हेडर इक्वल टू नन का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम्स की जो नेम है वो 0, 1, 2 इस तरह से आए तो फिर आपको हेडर इक्वल टू नन देना है। अब चाहते हैं कि कुछ रोज जो है, अब किसी रो को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप रोज इक्वल टू कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि एन रोज इतने ही, मान लीजिए आपकी 4 रो 5 रो ही आप इंक्लूड करना चाहते हैं या उतनी ही रोज आप रीड करना चाहते हैं तो एन रोज इक्वल टू एन। देखिए स्किप रोज और एन रोज, स्किप रोज का मतलब है कि आप कौन सी रोज को स्किप करना चाहते हैं, वो एक रो हो सकती है आपकी, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। एन रोज का मतलब है कि एन रोज कितने नंबर ऑफ रोज आप उसमें रीड करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट पाथ है उसका, कंप्लीट आर्गुमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डाटा टू CSV फाइल। अब ये सोचिए कि आपके पास डाटा फ्रेम बना हुआ है कोई और उसका डाटा आप CSV फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, to_CSV मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डाटा फ्रेम का नाम .to_CSV और ब्रैकेट में फाइल का पाथ देना है आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव ए डाटा फ्रेम नेमली DF7, मान लीजिए कोई डाटा फ्रेम आपके पास है जिसका नाम DF7 है, उसके पास ये फॉलोइंग वैल्यूज हैं, रोल नंबर, नेम, सरनेम, ओके। सो टू स्टोर दिस डाटा ऑफ DF7 यू कैन राइट DF7 डॉट to_CSV, C ड्राइव के ऊपर डाटा new.csv। As no separator has been mentioned, it will take the default separator character as comma, ठीक है। अगर आप सेपरेटर कैरेक्टर इसके अंदर देंगे तो फिर वो सेपरेटर कैरेक्टर हो जाएगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप कॉमा ले लेगा बीच में। तो C ड्राइव के ऊपर डाटा नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनेगी new.csv और उसके अंदर ये डाटा फ्रेम का जो भी डाटा है उसमें स्टोर हो जाएगा। So if it will take a default separator character comma to separate data in the CSV file. Also even if there exists a file with the same name, अगर मान लो जो भी नाम आपने दिया और पहले से वो उस नाम से फाइल है तो उसको बिना वार्निंग के ओवरराइट कर देगा। It will simply overwrite the file without any warning. So you can see एक और फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। द डाटा फ्रॉम डाटा फ्रेम DF7 इज स्टोर्ड इन दिस CSV फाइल विद अ सेपरेटर कैरेक्टर एज कॉमा। अगर आप कॉमा की जगह कोई दूसरा कैरेक्टर देना चाहते हैं तो एज आई टोल्ड यू गिव द आर्गुमेंट SEP इक्वल टू पाइप सिंबल। तो आप देख सकते हैं अब जहाँ पे कॉमा था वहाँ पे ये पाइप का सिंबल जो है वो ऐड हो गया है। You can see one more example. Consider the following data frame. इस data frame का नाम है all_df, which have the values as name, product, target, sales, right? Some NaN values also there. So you have to write a program to export the contents of this data frame to a CSV file. So you can see import pandas as PD. Now data frame is created or loaded here. पहले आपको डाटा फ्रेम लिखना पड़ेगा यहाँ। Then write the command all_df dot to_CSV। अब इस डाटा फ्रेम का डाटा आपको CSV फाइल में लिखना है तो पे वर्क
ये फोल्डर का नाम हो गया, all.csv ये आपकी फाइल का नाम हो गया, राइट। सो दिस इज द आउटपुट, यू कैन सी द आउटपुट ऑफ all.csv फाइल, right. See the created CSV file now stored all NaN values of the data frame. अब जहाँ पे ये डॉट डॉट आ गया वहाँ पे so you can see write a program to store the all df data frame of the previous example in the file all n.csv with a separator character. Import pandas as pd, the same all df dot to underscore csv. अब आपको सेपरेटर, जब भी आपको सेपरेटर करेक्टर देना है तो SEP आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन सी सेपरेटर करेक्टर आपने दे दिया है। सी द क्रिएटेड CSV फाइल स्टोर्स ऑल NaN वैल्यूज ऑफ द डाटा फ्रेम विद द सेपरेटर करेक्टर। यहाँ पर वो डॉट डॉट आ गया था खाली जहाँ पे NaN लिखा हुआ था, तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ लेट्स कम टू नो कि हाउ वी कैन हैंडल NaN वैल्यूज विद to underscore CSV. So sometimes our data frame has some missing values. For instance, execute the following two statements to have the missing values in your data frame, like df7.loc यानी कि location 3 comma name equal to np.nan। तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी नेम की वहाँ पे NaN आ जाएगा। df7.loc 0 कॉमा सरनेम इक्वल टू np.nan नॉट ए न्यूमेरिक। तो वहाँ पर इन दो लोकेशन के ऊपर आपकी वैल्यू NaN आ जाएगी। सो यू कैन सी जहाँ पर जो एड्रेस आपने LOC करके दिया था वहाँ पर सपोज NaN वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। सी द डाटा फ्रेम df7 हैज़ 2 NaN as values in rows 0s and 3 respectively. Now if you store the data frame in a CSV file by giving the following command df7.to underscore csv c पे data new 3.csv sep equal to this pipe symbol or any other symbol, by default the missing NaN values are stored as empty string इन द CSV फाइल। खाली स्ट्रिंग आ जाएगा वहाँ पर। द फाइल new3.csv विल लुक लाइक एज शोन ऑन द राइट लाइक दिस। तो देखिए जहाँ पर NaN था वहाँ पर इस तरह से खाली जगह आ जाएगी। द NaN वैल्यूज आर स्टोर्ड एज एम्प्टी स्ट्रिंग बाई डिफॉल्ट, ओके। So we can specify your own string that can be written for the missing NaN values by giving an argument na_rep, यानी कि NaN वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये आर्गुमेंट na_rep इक्वल टू स्ट्रिंग नेम। कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हैं। सपोज आई वांट टू फिल नल, जहाँ पर NaN वैल्यूज है मैं वहाँ पे नल लिखना चाहता हूँ। सो यू हैव टू राइट द कमांड लाइक दिस df7.to underscore csv c पे डाटा new 3.csv ये आपका फाइल पाथ हो गया, कॉमा sep इक्वल टू पाइप सिंबल और सेमीकोलन और एनी अदर करेक्टर, कॉमा na_rep यानी कि नेन वैल्यू को रिप्लेस करना है आपने नल से। दिस इज योर स्ट्रिंग नल। So now you can see null will be replaced। जहाँ पर आपकी NaN वैल्यू थी वहाँ पे null लिखा हुआ आ गया। The NaN values are stored as null this time because of argument na_rep equal to null। So we can summarize to underscore CSV function as follows, where SEP and na_rep arguments are optional।
So you can see df.to_csv, then file path, sep इक्वल टू सेपरेटर करेक्टर, आप क्या देना चाहते हैं उसमें, और na इक्वल टू rep। अगर आपकी कोई nan वैल्यूज है उसको किसी पर्टिकुलर करेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Previous example 8, 9 are created CSV file without NaN values. Write a program to store the data of the all df data frame in a CSV file along with NaN values stored as null and separator as till sign. This is the till sign. Okay, so you will give the command import pandas as pd, right? Writing to the CSV file all df dot to_csv, then file path separator equal to till sign और na_rep इक्वल टू null। ठीक है, तो बीच में ये टिल का साइन आ जाएगा आपको सेपरेटर के लिए। आप सेमीकोलन दे सकते हैं, कोई और करेक्टर दे सकते हैं, और जहाँ पे भी nan वैल्यूज़ थी वहाँ पर जो है आपका null लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक और आई होप कि नाउ ऑल थिंग्स इज क्लियर टू यू कि हाउ वी कैन रीड डाटा फ्रॉम CSV फाइल और हाउ वी कैन राइट द डाटा फ्रेम्स डाटा टू द CSV फाइल। ओके, थैंक यू।